Hello dear students, how are you all? I will hope you all are fine. I am Bhupendra Verma, your science teacher. So dear students, today we are going to start third part of chapter 2nd in class 6th science. In this part, we will discuss about nutrients in some common food items and balanced diet and some deficiency diseases in detail. So let's start our chapter. First is nutrients in some common food items. How we understand this term nutrients in some common food items. कुछ जो common food items हैं उनके अंदर कौन कौन से nutrients होते हैं. Each food item that you eat has several nutrients. जो भी food item हम eat करते हैं उसमें कई तरह के nutrients पाए जाते हैं. Some in greater quantity and others in lesser quantity. कुछ ज़्यादा मात्रा में और कुछ कम मात्रा में. The following will you give an idea of the amount of the major nutrients in some food that you eat every day. इससे नीचे वाले जो पोर्शन में पढ़ेंगे उसमें में आइडिया होगा कि इस फूड आइटम में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फर्स्ट इज शुगर. शुगर इज 100% कार्बोहाइड्रेट बट ईटिंग टू मच शुगर इज नॉट गुड. Sugar contain 100% carbohydrate. We know that carbohydrate provide energy to our body, but eating too much sugar cause the diabetes in body. It can disbalance the insulin level in body. Next, in pulses, दालों में there are less carbohydrate, approximate 60%, and then in cereals, but proteins is 20%. The pulses कंटेन 20% प्रोटीन्स एंड 60% कार्बोहाइड्रेट. बच्चे जो दालें होती हैं दालें 60% कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं और 20% जो हैं प्रोटीन कंटेन करती हैं. दे ऑल्सो हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो पल्सेस ऑल्सो कंटेन्स vitamins and minerals. Next, the pulses are the good source of proteins, especially for the people who follow a strict vegetarian diet. So pulses are the good source of protein for the vegan persons, vegetarian persons. Next is fish and meat and eggs are good sources of proteins. They also provide you with fats. Fish, meat and eggs are good source of proteins. ये प्रोटीन के good source हैं and they also provide you with fats. साथ में fat provide करते हैं. So ये किसके source हैं? Proteins और fat के rich source हैं. Next is milk. Milk and milk products are rich in mineral calcium, which is good for bones and teeth. They also provide you with vitamins. जो milk हैं और milk products हैं like cheese, butter, curd, ये सारों में कौन सा कैल्शियम पाया जाता है? मिनरल कैल्शियम, which is good for bones and teeth, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है. They also provide you with vitamins. साथ में विटामिन भी प्रोवाइड करता है. Clear students? Next is carrots. Carrots are the rich in vitamin A, which is very good for eyes. जो carrots हैं गाजर हैं वो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. Next is spinach and cabbage are the rich in vitamins and minerals. They also provide you with roughage. जो पालक हैं और जो गोभी है वो हमें क्या देती है? विटामिन के तो रिच सोर्स ही हैं, मिनरल्स के भी हैं, साथ में फूड का जो पार्ट है रफेज वो प्रोवाइड करती है. ठीक है. नेक्स्ट है क्लैरिफाइड बटर एंड घी. बटर एंड ऑयल आर 100% फैट्स. दे मस्ट बी इंक्लूड इन योर डाइट बट इन लिमिटेड अमाउंट्स बिकॉज द मोर अमाउंट ऑफ घी एंड फैट कॉज द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड विच इज not good for our health. Next is food rich in carbohydrate and fats provide energy to the body are known as energy giving foods. कौन कौन से फूड एनर्जी गिविंग फूड है? जिनमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज और फैट्स की परसेंटेज ज़्यादा हो, these food are called as energy giving foods. The food which contain carbohydrate and fats are known as energy giving foods. For example, food rich in proteins which help to body to grow are known as body building foods. देखिए जो प्रोटीन कंटेन करते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाने जाते हैं. फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. जो विटामिन और मिनरल कंटेन करते हैं उन फूड्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स. दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बॉडी
डिजीज़, जो हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? A balanced diet is one that contains the proper amount of each nutrient. बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। ये सारों के लिए सेम नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क वंस डन। ये डिपेंड करती है एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल, एंड टाइप ऑफ वर्क दैट वंस डन, जो कितना काम करता है। ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले के लिए ज़्यादा चाहिए उसमें न्यूट्रिएंट, और कम हार्ड वर्क करने वाले के लिए कम न्यूट्रिएंट चाहिए। इन अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रोज रैपिडली, ही और शी नीड्स मोर प्रोटीन्स। देखिए, जब शुरुआत में चाइल्डहुड में बच्चा डेवलप करता है, ग्रो करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, बिकॉज प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। Nursing mothers and pregnant women also need more proteins to serve the needs of their growing baby. जो नर्सिंग मदर्स हैं और प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, नर्सिंग मदर मीन्स जो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग करती हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि वो बेबी की ग्रोथ में हेल्प कर सकें। अ हार्ड वर्किंग लेबोरियर नीड्स मोर एनर्जी। मैंने अभी बात बताई बेटा आपको, जो हार्ड वर्किंग वर्क होगा उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। सो दे नीड मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक अ फार्मर डू द मच मोर हार्ड वर्क इन द फील्ड्स, सो ही नीड्स मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। नाउ कुकिंग ऑफ फूड, हाउ वी कुक द फूड। फूड सच एज वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट आर कुकड बिफोर ईटिंग। कौन कौन से फूड को हम कुक करते हैं बिफोर ईटिंग? वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मीट। मीट को, सब्जियों को और अनाज को पकाया जाता है बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग क्या हेल्प करती है? फूड को सॉफ्ट बनाती है, टेस्टी बनाती है और ईजी डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है। बट द रॉन्ग कुकिंग मेथड डिस्ट्रॉय द सेवरल न्यूट्रिएंट्स इन इट। अगर हम रॉन्ग कुकिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। छीलने के बाद में सब्जियां और फल धोने से उनके सारे विटामिन्स और मिनरल्स पानी के साथ वॉश हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। वॉशिंग राइस एंड पल्सेस रेपिडेटली ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। दालों को और चावल को बार बार धोने से उनके अंदर भी विटामिन्स और मिनरल्स कम हो जाते हैं। फूड शुड बी कुकड इन जस्ट इनफ वाटर। पानी को एकदम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर में कुक करना चाहिए। कुकिंग इज टू मच ऑफ वाटर देन द थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे मेक्स द फूड लूज न्यूट्रिएंट्स। देखिए, अगर हम खाने के अंदर ज़्यादा पानी के अंदर पकाएंगे और एक्सेस ऑफ वाटर को हम निकाल देते हैं उसमें से, तो सारे जो न्यूट्रिएंट है वो उसके साथ डिजोल्व होके चले जाएंगे। एंड विटामिन सी इज दैट विटामिन विच डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हीट। कौन सा विटामिन है बेटा जो हीट करने पे डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू heat. Vitamin C we are obtained from citric fruits and raw fruits. जो कच्चे फल होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। Now we discuss some deficiency disease in detail. People who do not get the right amount of all nutrient from their food suffer from deficiency disease. वो व्यक्ति जिसे प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज़ का शिकार हो जाता है। Deficiency disease of carbohydrate. About 320 gram of cereals can provide the 12 years old with the energy he or she needs per day. अगर एक 12 साल का कोई व्यक्ति है तो उसको 320 ग्राम सीरियल्स चाहिए, यानी अनाज चाहिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ योर डाइट गिव्स लेस एनर्जी देन रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, इट इज़ डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, देन वी आर डेफिशिएंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल विद द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन देयर डाइट आर वीक एंड डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना। जो पीपल्स जिनको कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी रहती है वो उनकी डाइट के अंदर वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना, उनके काम करने की ताकत ज़्यादा नहीं होती। दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन को झेल नहीं पाते हैं। एंड ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो लीड्स टू इल हेल्थ।
ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी क्या हो जाता है, बॉडी में हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स converted and stored in the form of fat in body. This leads to increase in the body weight and called obesity. क्या हो जाता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाती है बॉडी। ठीक है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से भी, ज़्यादा खाना खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट लीड्स टू स्वेयर malnutrition स्पेशली इन चिल्ड्रंस। प्रोटीन की डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी कहते हैं। इसमें जो पहला डिजीज़ आता है क्वाशियोकोर। इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्वाशियोकोर। द स्टमक बिकम्स स्वेलन, पेट फूल जाता है। एंड द लेग्स बिकम्स थिन, पैर पतले हो जाते हैं। एंड द स्किन शोज अगली पैचेस, स्किन पे भद्दे दाग बन जाते हैं। इफ़ द डिजीज़ इज़ नॉट treated in time, the mental and physical growth of child slow down. अगर इसे प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है टाइम रहते हुए, तो जो बच्चा है वो मेंटली और फिजिकली भी ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है मैरासोमस। मैरासोमस इज अ डिजीज द चिल्ड्रन कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस डिजीज़ का नाम है मैरासोमस। एंड द चाइल्ड बिकम्स सो थिन एंड लूज द फोल्ड्स ऑफ द स्किन ऑन द बॉडी। देखिए, ये है मैरासोमस से पीड़ित, ये बॉडी के ऊपर स्किन चिपक जाती है और एकदम इसी तरह का सिचुएशन में चला जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। विटामिन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया, जरूरी पोषक तत्व क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच विटामिन इज नीडेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। हर एक विटामिन को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर विटामिन लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज। अगर विटामिन की भी कमी हो जाती है तो बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं। दीज डिजीज अफेक्ट द आइज, स्किन, बोन्स, हेयर एंड जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये आंखों को, त्वचा को, हड्डियों को, बालों को और बॉडी की जनरल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नाउ लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, देखिए स्कर्वी। अब डिजीज़ को डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्कर्वी। स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज अ काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जिन लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है उन्हें स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मुसोडों में से खून, वाउंड्स नॉट हीलिंग प्रॉपरली, चोट जल्दी से भरती नहीं है, ये इसके सिम्टम होते हैं। सो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस डिजीज़ का सबसे पहले जो पता चला था वो कब पता चला था, 1747 में डॉक्टर जेम्स लिंड ने इसे डिस्कवर किया। और वो सी वॉयज के जो लोग सी वॉयज पे जाते थे उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी, क्यों कि सिट्रिक फ्रूट्स उस टाइम स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का निर्माण नहीं हुआ था। नेक्स्ट डिजीज इज रिकेट्स। Rickets is a disease of the bones. In the children suffering from rickets, bones become soft and hence get bent and deformed. Rickets जो है डिजीज़ है जिसके अंदर हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। ये जो होता है डिजीज़ क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी एंड मिनरल एंड कैल्शियम। एक तो कैल्शियम की वजह से, दूसरा विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ है रिकेट्स। नेक्स्ट इज एनीमिया। एनीमिया इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट। एनीमिया जो है आयरन की डिफिशिएंसी यानी आयरन की कमी से बॉडी में हो जाता है। इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज आयरन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि आयरन जो है मेन सोर्स है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन से बनी है रेड ब्लड सेल्स RBC। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज लुक्स पेल, गेट्स टायर्ड क्विकली, सफर्स फ्रॉम द लॉस ऑफ एपिटाइट। इसमें होता क्या है, स्किन जो है पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है खून की कमी की वजह से, और विटामिन B12 की कमी से होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है। आज का जो लास्ट डिजीज है वो है गोइटर। Goiter is caused by the lack of mineral iodine in diet.
the thyroid gland situated in the neck region becomes swollen and there is a reduced production of the chemical called thyroxine in the body that controls the growth. गोइटर वो डिजीज़ है जो थायराइड ग्लैंड के स्वेलोन होने से, फूल जाने से होता है। गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल करके बड़ी हो जाती है और गले बड़े हो जाते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड द अबाउट टर्म्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज़. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.